And I think today I will say that yes, madam, you have chosen a correct person, because even in my center, almost 90% of the work is done by my nurses. In fact, today I was in Navachandi Yajna, and today my sister has started stimulation for two patients when I was even not there, because I wrote everything, all consents and everything was already been taken. Today I want to emphasize some of the important points, probably which might be rebellion also. Second thing, you may feel that कि अरे those who are doing IVF कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, कि ये तो ऐसे तो IVF नहीं होता. लेकिन मुझे लगता है कि पूरा सुनने के बाद आई थिंक एवरीबडी विल से कि अरे हाँ, IVF ऐसे भी होता है और ऐसे ही होता है. द रीजन बिहाइंड इट इज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि what is our intention of doing IVF? That has to be very clear. And I think that is simply to make my patient pregnant. Second thing, to lead her the safe pregnancy period, that is antenatal period, and to deliver a good baby at right time with good birth weight and good functions. That should be the aim. And when we consider these all factors, then what we require or what nature gives us is a one single oocyte, a one single sperm, and he prepares, the nature prepares with that much armamentarium. That too, there is no steel wala walls. That too, there is no epoxy. Then there is no vanishing the some currents in the floor and all. So this is not, there is nothing in this nature. Then probably in last many years, what has happened, if we have started doing this IVF more and more difficult by making the more and more different and difficult and very costly lab parameters. And that's why everybody is thinking that कि अरे ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो 1.5 करोड़ का है, इसमें तो बहुत मंजन है. But I think there is nothing manjan like thing. And when this law came, the ART Act came in 2023, and if you have seen all the drafts in the preparation of this ART Act, then you will realize what I want to say. If you see the first draft of 2016, then you will realize all these things, they were there. Steel wala wall hona chahiye, then ye window hona chahiye, then ye hona chahiye, wo hona chahiye. But later on, as the many persons from all parts of the India, all parts of the world, along with the embryologists and even the rural workers, they were engaged, then suddenly this draft started changing. And if you see the final draft of 2023 ART Act, then madam, you all will realize that only three things are written there. These much things are required. Proper lab setup has to be there, and this much experience is required, and the mechanism of managing the complications at each step of the IVF should be there, and even the hormonal lab setup should be near and approachable to the IVF lab. So only these much things are being given in the law. The reason behind it is, yes, initially it was made like this is something like buying a Mercedes, और मारुति गाड़ी से तो हम जा ही नहीं सकते, ऐसे बोला गया था. But that is not true. Now coming to the protocols. Now what is our aim? First and foremost, we have to decide our aim. Suddenly some may ask, I have some patient of big endometrioma and big and a low AMH and her age. Forget about it. We will start with the maximum chunk of the patients. Now what are the maximum chunk of the patients?
First and foremost, again, today what is I am going to utter is after the experience of 20 years of doing IVF as well as of being practicing in many parts of the country, like metros, like rural part of the India, like public charitable hospital everywhere. Now, the first and foremost thing, as I said, what should be our aim? To make the patient pregnant. Then we have to decide what should be my stimulation protocol. Now, what is that protocol? Whether I want a very multifollicular development, or I am happy with 5 or 6 follicles, which will give 5 or 6 good oocytes. For that, we have to decide what type of patient I am dealing with, and that's very important. Now, let us go one by one. Now, we are dealing with the polycystic ovary patients, and we have landed up in the situation because we are not going in the details why that patient was taken. Now we have taken the patient and how to use the simplified thing that we are going to discuss today. We may discuss later on how to choose a patient for IVF. That can be a different topic. So now our patient, which is taken for IVF, is a polycystic ovary patient. Now again, here we have to decide whether it is her first cycle or already many cycles, either of the ovulation induction, IUI cycles or IVF cycles are being done by the previous doctor. So we have to go thoroughly with the file of the patient, and that file will give us the correct answer. And yesterday only I got the answer, and that was in the previous cycles of that patient, recombinant FSH was used. For IUI, only 150 IU, only 3 doses were given, and patient went into OHSS. Now, when same patient has come to me for IVF, what should be my protocol? It's very simple thing. First and foremost, here I will never use any other protocol, but I will go for Antagon protocol because I do not want my patient to go in OHSS. Second thing, my motto is I will use the minimal stimulation. Maybe it is prolonged, but I will not start with high dosages because we have seen in previous experience that even with the slightest dose of RFSH, along with letrozole, she has gone in OHSS. So considering the previous experience, we have to decide in this cycle, how am I going to proceed? The next thing, very important thing, as I have mentioned probably in the talk of PCOS, that in this patient, we have to do the synchronization of the follicles prior 1 or 2 months by using OC pills, and that too, not a simple OC pill, but a OC pill containing the non-androgenic or anti-androgenic progesterone like drospirenone or cyproterone. If she is obese, I have to do lot of efforts. I have to discuss with her husband as well as her family. I have to give her a clear-cut idea that if she reduces the weight even by 10% of the current weight, if she is obese, the success is going to increase by at least 20 to 30%. If she reduces the androgens, which are high because of her polycystic ovary, if she reduces prior the cycle, her success will be high. And these are the very important things which we have to understand. So suppose now this is a patient of polycystic ovary, the best is to do her prior preparation. That is in the form of reducing the obesity, reducing the androgen levels, doing good synchronization of the follicles,
and starting with low dose of either HMG or RFSH, depending upon the economical condition of the patient. Because all the papers and even all the guidelines now they have agreed upon that using HMG and RFSH, it is not going to cause much difference. 19-20 का फर्क हो जाएगा, but it is not like that कि HMGs will do this and RFSH will definitely do this. This is a myth. So that we have to understand. Let us start with a minimal dose. An ideal dose to start any IVF cycle will be 225 to 300 HMG. But in this patient of PCOS and who is a hyper responder, because she was a hyper responder as per the previous experience, we may start with low dose like 150 to 225 along with even letrozole for 5 days. And now this patient already we will put on metformin as well, because that is again going to reduce the hyper response of this patient. I am not saying that it is going to reduce the routine response, but definitely metformin when given even right from beginning of the cycle definitely will keep control on the hyper responsiveness of the follicles or of the oocytes. That's a very important thing we have to understand. Again, when we have decided this, then what we have decided, okay, it will be a low dose, it will be an antagon protocol, then whether to use the fixed dose protocol or whether to use the variable protocol. Again, from experience, I am saying that Madam has mentioned the Center of Israel, and yes, I had an opportunity I have worked for a small period of time with Professor Roy Homburg and Professor Jerry Conway. And from that experience, I say that yes, low dose HMG or RFSH along with the fixed dose protocol of the antagon, and that to a simplest antagon like cetrorelix 0.25 subcutaneous daily from the day 7 of the cycle or day 6 of the stimulation. If it is added and if we do the monitoring of that patient, definitely there will be a good crop of the follicles, less hyper responsiveness. Then the question comes, in such patients, what will be the ideal trigger to use? Now it is beyond doubt clear that it is the HCG which may be given for the trigger or even which is increasing after the fertilization. They are one of the important causes for the hyperstimulation in that case. So what is better? The better is to use the trigger with GnRH agonist. Now again, which to use? Whether to use decapeptyl, gonapeptyl, or whether to go for leuprolide acetate. Again, from our experience, now this experience is a combined experience. This experience was not only of mine, but again the experience from the embryology lab was taken. And even it was compared with the take-home baby rate. So I am not cursing any drug over the other. But if we see that if the trigger is used given with leuprolide acetate, the quality of the oocyte is better than when the other decapeptyl gonapeptyl. Because the reason is not known, but embryologist has specifically mentioned in the notes कि सर आज आपका एम्ब्रियो में थोड़ा सा ये ग्रेनुलेशन आया, आज ये आया, and when we went back and we have seen that, so in that we have found out that whenever we want to use the trigger with agonist, it is the leupride which is best, and we are using it since so many years. There was confusion कि we have to do all the cycles as all freeze cycles. That means prepare the embryos
Either take them on day 5, then cryo them, and then go for cryopreservation, and maybe after 1 or 2 months, go for the embryo transfer, frozen embryo transfer. But again, that I say, and not only I say, but all the guidelines now have accepted कि आप इधर से जाओ, आप उधर से जाओ, या आप उधर से जाओ, सब रास्ता भगवान के पास जाता है. This is a famous dialogue of one movie. I do not remember the name. I think Kabhi Ha Kabhi Na. It was Suchitra Mukherjee, and it was the dialogue of Nasruddin Shah. So here also, आप ये प्रोटोकॉल यूज करो, आप वैसा करो, आप गो बाय एफईटी, सक्सेस रेट 40% से ज्यादा कहीं आने वाला नहीं है. इट इज ऑलवेज द सेम. ओनली हैंकी फैंकी सेंटर्स, दे विल से दैट कि वी गिव 90% सक्सेस रेट, वी गिव 100% सक्सेस रेट. बट इफ वी सी द टेक होम बेबी रेट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, it will go down to 30%. That is the success rate of the nature. So that we have to understand. Otherwise, unnecessarily, just to increase the number of follicles, हमारे यहाँ पे मैंने 23 निकाले, मैंने 20 निकाले, मैंने 15 निकाले, अरे एक चल क्या रहा है? Again, the Indian government has to intervene. And then in the guideline, they have to say that कि बाबा 6 निकालो, 6 के आगे का जरा थोड़ा सा संभल के यूज करो. Because that is not required. Many of the consultants who are listening this talk, they will absolutely disagree with me. But I see that again, we have to go back, ask to us, what was the aim of this stimulation? To make patient pregnant. क्या सिर्फ 2-2 दर्जन अंडे निकालना ये हमारा एम नहीं था. हमारा एम था पेशेंट को अच्छे oocyte निकाल के उसे प्रेग्नेंट बनाना. And that's it. So, again, if these patients, they were taken for same cycle transfer, then what was the difference? Yes. Again, we have seen that when there is no hyperstimulation, second thing, right from beginning, if the endometrium is increasing, like our routine IUI cycle, almost from day 10 onwards, by 1 to 2 millimeter per day, and if it is maintained triple line, and if on the day of HCG or on the day of trigger, if the serum progesterone level is less than 1.2, that means patient has not entered in the luteal phase. That means there is no premature luteinization. Definitely we can take the patient for same cycle transfer, and it will give good results. And there is no necessity that unnecessarily to take all the patients for the all freeze cycle. Again, from where this passion came of all freeze cycle? Somebody will may say the word, वंदना जी थोड़ी सी स्माइल करने लगी कि गोरख यूज द वर्ड पैशन. तो ये क्यों यूज किया वर्ड? तो वर्ड ये यूज इसलिए किया क्योंकि दिस वॉज नॉट ऑलवेज अ साइंटिफिक इंडिकेशन, इट वॉज अ क्लिनिकल इंडिकेशन. दैट मीन्स अरे हम बैच में कर रहे, कहाँ पे करे? वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आता है इतनी दूर से, चौथे दिन वो आके फिर फ्रीज करके चला जाएगा तो अच्छी बात है. वन ऑफ द रीजन वॉज दैट, and that was the one of the reason, and that's why maximum cycles they were shifted from same cycle transfer to all freeze cycles. It was the reason was logistics, and no else reason was there. So that's we have to think on it. Okay, whenever I start my center, again I will say go back at day 1 and ask ourselves हमें क्या करना है. हमें सिर्फ बैच निकाल के हमें ऐसे बोलना है कि हम 100 साइकिल करते हैं, 200 साइकिल करते हैं, 300 साइकिल करते हैं. ये दिखाना है कि माय 100 पेशेंट्स आर प्रेग्नेंट एट द एंड ऑफ 6 months. हर एक 10 या 15 दिन में हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट तो प्रेग्नेंट रहती है. आई थिंक दैट वी आर मेंटेनिंग. मैडम टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, वी से दैट every 10 days one patient is pregnant. तो बस वो तो होना ही है, माने मिनिमम. एंड अगेन दिस इज अगेन व्हाट वी आर सेइंग कि these are the patients. Patient is defined as proper
as per the definition of infertility. Again, IVF patient will be defined as a perfect definition कि बाबा IUI cycle पे वो पूरी खत्म हो चुकी है, and then she has come into that. ऐसे में हर एक 10 दिन में एक पेशेंट तो प्रेग्नेंट कराते हैं, so that is we are happy. Likewise, माने that should be the aim, I think. माने ये तो into multiple होता है, लेकिन this is one example as I give. Coming back to the patient who is probably a modern age girl, she is obese and she has married late and her AMH is low. Again, it is my sincere request that please do not decide any protocol on AMH. No guideline allows it. If you ask me, in reproductive medicine science, which hormone, if you are given permission, मुझे समझो शारदा जी मैडम ने ये मुझे सवाल पूछा कि गोरख बेटा एक हार्मोन आपको नहीं करना है पूरी साइकिल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, आप कौन से हार्मोन को छोड़ दोगे? आई विल चूज AMH because that is a useless hormone. First of all, it is not a hormone. Second thing, it is useless. Third thing, all the labs, I am sorry for using this word, but I used it, I am sorry. But yes, the reason behind it, all the labs, they are not doing in a proper way. Even madam, we have done a study. This was a study of 82 patients. And we did AMH of same patient with same lab on 3 different days. Day 2, day 16 and day 21. And alas, it was different. Madam, it was different for more than 1 to 2 standard deviations. कहाँ से बोल रहे हैं कि हम इट इज ए स्टेबल हार्मोन? सेकेंड थिंग, अभी ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा थोड़ा विनोद बुद्धि से, लेकिन ये भी स्टडी है. दिस इज ऑफलाइन स्टडी, दो इट वाज नॉट अ प्रॉपर पेपर. अगर AMH लैप्रोस्कोपिक सर्जन करता है तो वो 8 या 10 आ जाता है. अगर AMH IVF कंसल्टेंट करता है तो 1 या 2 आ जाता है, या 1 से नीचे आ जाता है. अगर यही AMH वो पेशेंट का रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट करता है तो वो नॉर्मल आ जाता है. तो बस अभी जब बोलते हैं ना कि जो सीखा हुआ है उसे शब्दों की जरूरत नहीं है, माने दिस इज अ फैक्ट. एंड मैडम, दिस इज अ सर्वे. आई हैव अ सर्वे ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 100 पेशेंट्स कि वेयर दिस इज बीन शोन कि सेम पेशेंट का अलग अलग लैब में और अलग अलग कंसल्टेंट के पास AMH गलत आ गया और अलग अलग आ गया. So that means we are not supposed to decide any protocol on AMH. No guideline says that even for deciding the premature ovarian insufficiency or to decide the AFC, that is or ovarian reserve, AMH is not been quoted in any guideline. What is been quoted is day 2 AFC by transvaginal sonography. Second, day 2 FSH. Only these two things. They are the factors which will decide, number 1, the correct ovarian reserve. Number 2, the definition, they are included in the definition of premature ovarian insufficiency or premature ovarian reserve thing or failure. So the bottom line, do not decide any protocol on AMH. Please see on your own what is the AFC of this patient. And now you have seen that my patient has low AFC. So means अरे अभी इनके तो 4 ही फॉलिकल दिख रहे. और again we have to go back with the previous response, because here now the protocol will make automatically, it will be simplified. Previous response हमें ये बता रहा है पेशेंट A टाइप कि इनमें अगर हम 5 दिन का भी HMG देते हैं तो 8वें दिन पे तुरंत सिस्ट बन जाता है. एवरीबडी विल एग्री कि द लो ओवेरियन रिजर्व पेशेंट्स दे गेट सिस्ट ऑन डे 8, 9 और 10, राइट. तो ये बहुत बड़ा हो जाता है. तो ऐसा होता है कि वी स्टार्ट विथ 300 HMG और दबाक से छठे दिन पे 20, 20, 25 के 2-3 मिल जाते हैं. और फिर ये आ जाता है कि अरे बाप रे, आने वाले 4 दिनों में अभी इसको एंटागॉन कब दूं और इसको मैं अभी फॉलिकल HMG दे दूं या ना दूं या छठे दिन पे ही कर डालूं वो पिकअप.
सो दीज आर द वेरी बैड पेशेंट्स। दूसरे पेशेंट ऐसे मिलते हैं कि जहां पे अरे 12 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, लेकिन फॉलिकल हिला ही नहीं, और 14-15 दिन जब हम देते हैं तो फॉलिकल बढ़ता है और हमें 18-20 साइज का फॉलिकल मिलता है। सो दिस इज अ टाइप बी पेशेंट आई विल से, माने ये अलग अलग तरह के पेशेंट्स है। एंड देयर आर थर्ड टाइप ऑफ पेशेंट्स कि जो लो ओवेरियन रहते हैं लेकिन लेट्रोजोल को भी रिस्पॉन्स करते हैं, सिंपल सादे सीसी को भी रिस्पॉन्स करते हैं। दीज आर द थर्ड वैरायटी आई विल से टाइप सी पेशेंट्स। तो हर एक पेशेंट का अगर हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देख लिया, वी कैन मेक प्रोटोकॉल सिंप्लीफाइड। अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्डर है, not by classical definition but the normal responders in the low ovarian reserve I am talking। मैडम हमने इनको तो सिंपल लेट्रोजोल 5 दिन का दे दिया, 150 मिलीग्राम का HMG शुरू कर दिया, एंटागॉन प्रोटोकॉल पे डाल दिया, या कभी कभी इन पेशेंट्स को शॉर्ट प्रोटोकॉल पे डाल दिया, एंड नाउ दिस पेशेंट्स दे डू वेरी वेल, दे डू वेरी वेल। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि इन पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, दिस पेशेंट सेड कि सर इतने तो पैसे है नहीं, तो 2-3 इंजेक्शन दे दो, IUI करा दो। और फिर ऐसे होता है कि जब ट्रिगर देने की बारी आती है तो 4-5 अच्छे खासे फॉलिकल मिलते हैं। कैन वी कन्वर्ट सच पेशेंट्स ऑफ IUI टू IVF? डेफिनेटली। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छे खासे oocytes। अगर वो मिलते हैं, अगर E2 लेवल बराबर आ जाता है, अगर ट्रिगर के दिन का प्रोजेस्टेरॉन लेस देन 1.2 है, और अगर हमारा ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम है जो हमें दिखा रहा है कि जोन 2-3 पे अच्छे खासे ब्लड फ्लोज आ रहे हैं हमारे डॉपलर मशीन्स पे, अरे अच्छी खासी कंडीशन है, चलो फसल आने वाली है। दैट शुड बी आवर मोटो। पेशेंट का बहुत पेशेंट पैसा बचता है। हाँ, एक होता है इन सब पेशेंट्स में बहुत बार कि इनका एंडोमेट्रियम कभी कभार अच्छा नहीं आता। नो प्रॉब्लम, वी कैन टेल दैट पेशेंट कि अरे इतना पैसा आपका बचा है तो इसमें हम पिकअप करा के रखते हैं, एम्ब्रियो बना के रखते हैं, फ्रीज करेंगे, अगले महीने में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले या नेक्स्ट महीने में जब ये अच्छा खासा आपका आ जाएगा। क्योंकि आपको इतना ज्यादा हार्मोन नहीं गया है, तो इवन इफ वी टेक अ गुड विड्रॉवल इन दिस मंथ, इमीडिएटली आई कैन टेक यू फॉर द ट्रांसफर in next month, even on day 21 of this cycle, after day 21 of this cycle, we can downgrade and we can take that patient for next cycle for transfer. Only that, see, again, this is not a rocket science. I will not say that this is like a 1 + 1 = 2, but one must understand the reproductive physiology for that matter. कि मैं इतना इंजेक्शन देता हूं, forget about the doses. Many I have seen, madam, many consultants are now talking कि तू कितना यूज करता है रे, या तू कितनी यूज करती है रे, तो वो बोलता है 4000, मैं 5000, मैं 6000। तो मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि ये 5000 6000 है क्या। तो फिर बाद में पता चला कि ये टोटल डोज ऑफ द HMG की बात कर रहे। अरे तो मैं तो डर गया, तो मैं बोला नहीं बाबा, so this is not nothing like total dose or something like that. कुछ पेपर रहेंगे, कुछ माने हर एक का इंडिविजुअल कुछ ओपिनियन रहेगा, बट नो गाइडलाइन, नो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सेज लाइक दैट। अभी मैं वापस एक लाइन बोलूंगा जो मैं हमेशा करते आ रहा हूं मैडम। 2003 से 2025 तक, मीन्स लास्ट 22 ईयर्स तक, स्पिरोफ जितनी बार नया आया वो उतनी बार नया लिया है और उतनी बार पढ़ा है। तो इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बस वो स्पिरोफ की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ती रहे, बिकॉज न्यू कंसेप्ट्स आर कमिंग, एंड फिर वहां पे पता चल जाता है कि अरे हाँ, अगर इस प्रकार से मैंने कॉम्बिनेशन में ट्रिगर दिया ये होता है, इस प्रकार से मैंने ऐसे दिया तो ये होता है। थर्ड टाइप ऑफ पेशेंट पे जाएंगे, जो पेशेंट जिसका मैंने बोला कि लो ओवेरियन रिजर्व है लेकिन उनका 6 या 7वें दिन पे सिस्ट हो जाता है। अभी इन्हें कैसे मैनेज करें?
क्योंकि ये तो बहुत माने डेंजरस पेशेंट होते हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार ऐसे होते रहते हैं. लेट अस सिट विद द पेशेंट एंड इन्फॉर्म द पेशेंट कि बाबा मैं आपको इस मैं आपसे इस प्रकार से ये इंजेक्शंस यूज करने जा रहा या रही हूं, या प्रोटोकॉल, कि शायद आपका एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें मैं आपके एंडोमेट्रियम के बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं सिर्फ आपका अच्छा खासा मुझे फॉलिकल मिले, बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग, बिकॉज यू आर राइटली सेइंग दैट कि दिस प्रेगनेंसी शुड बी विथ योर ओन oocytes. आप डोनर नहीं जाना चाहते, फाइन, नो प्रॉब्लम. तो इसमें शायद आपको ऑल फ्री साइकिल पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा, तो उसकी तैयारी रखो. नंबर 2, अभी पेशेंट को ये बोलने के बाद नाउ वी हैव टू डिसाइड अवर एम. मुझे कितने चाहिए? तो मुझे 1-2 पे मैं खुश हूं, मेरा लैब का कंडीशन वैसा है, उनका स्पर्म काउंट इतना अच्छा है, मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे मेरा भरोसा है कि ही इज माय अर्जुन, नो प्रॉब्लम. तो मैं 2 भी उस साइड पे आई एम रेडी टू डू द साइकिल. अदरवाइज अगर पेशेंट के पास उतने पैसे है एंड स्टिल पेशेंट इज सेइंग दैट आई डू नॉट वांट टू गो विद द डोनर साइकिल, फिर मैं उन्हें oocyte पुलिंग या एम्ब्रियो पुलिंग का ऑप्शन दे दूंगा. लेकिन अगर उनके पास वैसा है तो दैट इज नॉट फॉर माई सेक कि नहीं नहीं ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही करना है. नो, वी हैव टू गिव ऑप्शन टू द पेशेंट कि बाबा ये 3-4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है आपको डोनर जाना पड़ेगा. डोनर पे नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम. खुद के अंडे चाहिए, आपके अंडे बहुत बदमाश है, ये ऐसे बीच में बड़े हो जाते हैं, तो मुझे इस प्रकार से जाना पड़ेगा. मैं लो डोज पे जाऊंगा, लेकिन आपको लॉन्ग देना पड़ेगा, या मुझे आपको शॉर्ट प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, या कभी कभार अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल देना पड़ेगा. क्योंकि इनमें तो हम लॉन्ग प्रोटोकॉल पे नहीं जा सकते, क्योंकि लॉन्ग प्रोटोकॉल पे इतना डिप्रेशन हो जाता है कि बहुत बार 600 तक भी जाने के बाद फॉलिकल नहीं बढ़ता ऐसे पेशेंट्स में. दैट वी हैव सीन. सो वी डू नॉट वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज जो कुछ गैदर किया हुआ एक्सपीरियंस है ना गाइडलाइंस में या बुक्स में, वो भी यूज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का पैसा बहुत जाता है ये इंजेक्शंस के बाद. तो दैट वी हैव टू डिसाइड. तो ऐसे पेशेंट में वी हैव टू गो विथ शॉर्ट HMG. अगर इसमें मैं वापस एक बार बोलूंगा, आई विल रिवाइज माई सेंटेंस. मैडम, वी हैव सीन गुड रिस्पॉन्स इन सच पेशेंट्स विथ रिकॉम्बिनेंट FSH अदर देन HMG. क्योंकि ये जब कंपैरिजन किया था तो इन लोगों में RFSH was used, RFSH was better than HMG, and when it was started between 75 to 150, थोड़ा लॉन्ग देना पड़ा, लेकिन yes, we can get good crop of the follicles. Along with that, again, we have used letrozole or anastrozole in many patients, and we have got good follicles. Now, last variety of the patients, and then I will stop. The last variety of patient is. डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, आप लेट्रोजोल साइमल्टेनियसली यूज करते हैं ये गोनालेफ के साथ? यस मैडम, रिकॉम्बिनेंट FSH के साथ लेट्रोजोल भी यूज करता हूँ day 3 to day 7. 1 BD, 1 OD, 2.5 डिपेंडिंग अपॉन मैडम अगर पेशेंट का कैसा प्रीवियस है, लेकिन 2.5 either OD or BD depending upon the patient's condition. Then तो लास्ट वैरायटी है नॉर्मल रिस्पॉन्डर पेशेंट्स, कि जिनका हम IVF कर रहे हैं either because of the male reason or because of the tubal factor or because of the unexplained infertility, कि सब कुछ नॉर्मल था लेकिन हम कर रहे हैं. तो इनमें हम किस प्रकार का प्रोटोकॉल यूज करें? इनमें रूटीन प्रोटोकॉल, again I will say the best protocol is Antagon protocol, because it saves the patient's money, it saves the time of the patient, gives good number of oocytes, same cycle transfer can be done, तो पैसा बचता है. And the next is patient is safe, OHSS में पेशेंट जाएगा नहीं at any cost. तो हमें इस प्रकार से ये करना है. तो यूजुअल स्टार्टिंग ऑफ द डोज विथ नॉर्मल रिस्पॉन्डर्स having normal AFC or normal ovarian reserve will be 225 to 300.
either HMG or RFSH. Again, madam, we have tried one different protocol जहां पे we start with HMG. That means HMG पे शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलिकल, और जिस दिन हम सेट्रोरेलिक्स दे देंगे, माने एंटागॉन ऐड करेंगे, उस दिन से वी स्विच ओवर दैट पेशेंट फ्रॉम HMG टू RFSH, और आगे का जो 5-6 दिन का स्टिमुलेशन है वो RFSH पे भी लिया जाता है, माने पहले HMG और बाद में RFSH. कभी कभार ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनमें अच्छी तरह से ऐसे देखा गया है कि लेटर पार्ट ऑफ जो डे है, माने 6, 7, 8, 9 डे पे बढ़ता नहीं है फॉलिकल. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनका हम लिख के रखते हैं. इन पेशेंट्स में वी स्टार्ट विथ कंबाइन, दैट मीन्स HMG प्लस RFSH राइट फ्रॉम डे 2. तो ये दोनों में मैंने दोनों देना है थोड़ा थोड़ा. कभी कभार ऐसा होता है कि 150 HMG 75 रिकॉम्बिनेंट FSH, इस पे भी बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक जब भी पेशेंट सामने आता है तभी प्रोटोकॉल पे बोलना ये मुनासिब है. व्हाट आई हैव गिवन यू, दीज आर द ब्रीफ आइडियाज कि किस प्रकार से मुझे एक चीज याद रखनी है कि मुझे इस पेशेंट में कितनी ऊंचाई चाहिए, मुझे इस पेशेंट में सेम साइकिल करना है कि ऑल फ्रीज करना है, पेशेंट का इकोनॉमिकल फैक्टर, देन पेशेंट का रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी किस प्रकार से है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस पे किस प्रकार से पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया है. ये सब कुल मिला के वी हैव टू डिसाइड, दैट इज द IVF, दैट इज ART, देयर इज नथिंग एल्स एंड मोर देन दैट. एंड लास्ट थिंग जो ये आज के टॉपिक में नहीं है, फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा. आपने पूना का ये जो केस पढ़ा अभी जिस प्रकार से ये कुछ क्षति हुई, उस केस को लेके मैं थोड़ा सा बोलूंगा ये, बिकॉज वी हैव अ गुड फोरम. अननेसेसरीली यूसेज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन बंद कर दीजिए. जब प्लेसेंटा खुद ब खुद अच्छा खासा अपना फंक्शन लेता है, सेकंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का रोल नहीं है, unless until it is a case of prevention of preterm labor. Otherwise, no extra progesterone. So please, and that वो क्षति पहुंचाता है और बहुत सारे HDP के पेशेंट्स उसके कारण आ रहे हैं. So please understand that. अभी किसी ने फ्लैश में एक क्वेश्चन डाला था कि क्या आप डुअल ट्रिगर यूज करते हो, तो यस मैडम, बट नॉट इन ऑल. बट यस, अभी उसका एक ट्रायल चल रहा है कि जिसमें वी आर कंपेयरिंग this with that and with dual. तो उसका आने के बाद मैं इस पे बोलूंगा कि फॉर ऑल कि नहीं है. लेकिन आज तक तो ऐसा कर रहे हैं कि जहां पे हमें लग रहा है कि हाइपर रिस्पॉन्स है वहां पे वी आर यूजिंग एगोनिस्ट, और जहां पे 5-6 फॉलिकल्स है, 6-7 फॉलिकल्स है, वहां पे वी आर यूजिंग HCG. इवन अगर किसी ने मुझे पर्सनली फोन कर दिया तो मैं पर्सनली मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी नंबर दे दूंगा, और मेरे रिकॉर्ड तो पूरे ओपन है बिकॉज ICMR के तहत माने दीज आर ओपन रिकॉर्ड्स, माने एनीबडी कैन कम एंड जस्ट डिस्कस विद दिस थिंग्स. रियली मैडम, वी नेवर स्टिमुलेट अ पेशेंट टू गेट oocytes मोर देन 10 के आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं. दिस इज अ फैक्ट. ओनली वंस इन माई लाइफ टाइम 23 आए थे, दैट वॉज एबेरेंट रिस्पॉन्ड, और उसके बाद भी मिले क्या तो 7-8 ही मिले थे. But this has happened that too in very initial days. Otherwise, हमेशा जो एम है that is of 8 to 10 and never more than that. Never more than that. तो 8 to 10 अगर एम करेंगे तो 6-7 मिल जाते हैं. इसी प्रकार से अगर हम करेंगे 2 साइकिल तो आराम से हो जाते हैं, बिकॉज सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर डेफिनेटली गिव्स रिजल्ट, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर डेफिनेटली गिव्स द रिजल्ट. कुछ जरूरत नहीं है 3-3, 4-4 डालने की. 6 भी मिले, अच्छे क्वालिटी के oocytes और अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो, यस 2 तो साइकिल आराम से हो जाते हैं. सो आई थिंक मे बी कदाचित ये ऐसे होता होगा कि मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे लोगों का इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है. स्टिल दे वांट द बेबी, और वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहते. एंड बिकॉज आई वर्क इन हाई रिस्क, तो मैं HDP तो कभी मेरे OPD में देखना नहीं चाहता. आई ऑलवेज प्रिवेंट इट.
एंड अभी अभी मैंने मैडम 200 डिलीवर्ड आईवीएफ का जो पेशेंट का डेटा जो अभी कंपाइलेशन में है, उसमें मैडम ओनली 2 पेशेंट्स हैव एचडीपी, 198 पेशेंट्स दे डू नॉट हैव एचडीपी, एंड बोथ ऑफ द जो 2 है ये दोनों ट्विंस थे और उनको ही एचडीपी मिला. सो दैट इज मानी दिस आई एम टॉकिंग ऑफ आईवीएफ डिलीवर्ड पेशेंट्स either by normal delivery or by IVF or by cesarean section. So ये कुछ हैंकी फैंकी साइंस जरा भी नहीं है. So let us sit together, discuss, and then yes, somebody has asked, do you use low dose HCG for stimulation? ये कुछ नया नया ही अभी बहुत सारे टॉक्स चल रहे हैं on so many platforms कि जहाँ पे 1000 लोग इकट्ठा जाके किसी किसी का सुनते हैं और फिर ये कुछ छोटी चीजें शुरू करते हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स एंड आई नेवर डू सच थिंग्स. आई कंसिडर दिस थिंग्स एज ए कॉन्टामिनेशन ऑफ थॉट्स. तो जब स्पिर ऑफ में आ जाएगा, जब किसी अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आ जाएगा या किसी गाइडलाइन में आ जाएगा, तो ऐसे अब प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे. तब तक जब तक कुछ गाइडलाइन में नहीं आता, जब तक किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं आ जाता, आई विल नेवर यूज सच प्रोटोकॉल. सो थैंक यू वेरी मच. और यस, आपसे 2-3 सवाल करने हैं. एक होता है, एक मैंने भाषण दिया, एक होता है व्हाट इज माय फेवरेट. यस, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोटोकॉल? क्योंकि जब आपका फेवरेट प्रोटोकॉल होगा तो ही तो नर्सेस को पता चलेगा. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोटोकॉल इन नॉर्मल 10 से? 225 HMG एंटागन प्रोटोकॉल, फिक्स डोज सेट्रोरेलिक्स फ्रॉम डे 7 एंड खत्म. और अगर वो पेशेंट का E2 लेवल मोर देन 1000 जा रहा है या 6 से आगे जा रहा है अपना फॉलिकल का संख्या, तो बेटर टू यूज एगोनिस्ट ट्रिगर एंड टेक द पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन. हर एक पेशेंट का हम प्रोजेस्टेरॉन करते हैं ऑन डे ऑफ HCG और ऑन डे ऑफ ट्रिगर. ट्रिपल लाइन मैंने हर एक का मैडम मॉडिफाइड एप्पल बम में करता हूँ, मॉडिफाइड एप्पल बम एंड विदाउट चार्जिंग एक्स्ट्रा. मैंने रूटीन पे हम कर देते हैं, जो डॉपलर का चार्जेस है उसी में हम मॉडिफाइड एप्पल बम कर देते हैं एंड दैट इज वेरी 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 यूजफुल. मॉडिफाइड एप्पल बम अगर अच्छी तरह से हम करते हैं, माने वी हैव गुड मशीन्स, नो डाउट अबाउट इट. वी शुड हैव अ वेरी गुड सोनोग्राफी मशीन, अदरवाइज डूइंग IVF इज अ क्राइम. सोनोग्राफी मशीन अच्छा होना चाहिए, लैब आपकी कैसी भी हो. आपका जो HCG अगर आप देते हैं उसी सेम साइकिल के लिए, तो आप कितनी डोज देते हैं? 5000 से ज्यादा आज तक कभी नहीं दिया. और अगर मैं रिकॉम्बिनेंट यूज करता हूं तो वो 250 वाला एक ही इंजेक्शन, क्योंकि दैट इंजेक्शन इज सफिशिएंट टू मेक ऑल प्राइमरी oocytes टू कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocytes. वो ध्यान में रखना है. डॉक्टर साहब, आप यूरिनरी यूज करेंगे कि आप रिकॉम्बिनेंट यूज करेंगे? यूरिनरी यूज करेंगे. रिकॉम्बिनेंट वेरी फ्यू पेशेंट्स में, वो भी उनका इकोनॉमी देख के, दैट टू विद लो डोज. सर मैं आती हूँ, वो जो 4-5 AFC हैं, पेशेंट इज वेरी कीन दैट आई शुड हैव माय ओन बेबी विद माय ओन एग्स. उसका क्या फेवरेट प्रोटोकॉल है? पेशेंट इज 35-36 इयर्स. 300 HMG एंटागन प्रोटोकॉल. और उसको मैं बोलूंगा कि आपके अगर कोई लेट्रोजोल वगैरह नहीं देना. लेट्रोजोल तो मैडम हमेशा हमारे यूजुअली, अगर पेशेंट का एक मैंने देखा है कि अगर ऑल फ्री साइकिल करना है, सॉरी अगर ऑल फ्री साइकिल करना है तो लेट्रोजोल देते ही देते हैं. और अगर देते ही देते हैं. लेकिन अगर सेम साइकिल प्रोटोकॉल करना है तो उस टाइम 2.5 मिलीग्राम ओडी दे दूंगा, उसका प्रीवियस रिस्पॉन्स देख के कि बाबा ये लेट्रोजोल, क्योंकि बहुत सारे मैडम पेशेंट्स ऐसे भी है कि लेट्रोजोल देने के बाद भी उनका एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं आता. और ऐसे हो जाता है कि प्रीवियस IUI साइकिल पे या प्रीवियस ओवुलेशन साइकिल पे अच्छा खासा ट्रिपल लाइन नहीं आता. इन लोगों में नहीं, मैंने वी स्किप दैट लेट्रोजोल. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रायर रिस्पॉन्स. बट इफ यू आस्क मी कि सर आपका अर्जुन कौन है, तो HMG 300, 225 to 300, सेटोरेलिक्स, ट्रिगर विथ HCG 5000, सेम साइकिल. और बाद में ल्यूटियल फेज के लिए 400 मिलीग्राम BD वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन विथ
हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में यूज करता हूँ थोड़ा सा 500 में, वो भी वीकली, क्योंकि हमारे पेशेंट बहुत दूर दूर तक रहते हैं मैडम। माने 100 किलोमीटर जाएंगे तो कभी कभार ऐसे होता है कि डेली इंजेक्शन देने के लिए। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है, ये कब से यूज करते हो आप? मैडम वो डे ऑफ ट्रांसफर से, डे ऑफ ट्रांसफर पे दे दूंगा, 7 दिन के बाद दे दूंगा, फिर 7 दिन के बाद दे दूंगा, ताकि बराबर उनका जब बीटा एससीसी का रिपोर्ट आ जाता है फिर डिसाइड करेंगे आगे देना है नहीं देना है। माने दिस इज जस्ट टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, नथिंग एल्स। हमारे ब्रिगेड शर्मा भी, उनका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बहुत पसंद है उनको, वो तो ट्रिगर इसके बाद ट्रांसफर के बाद देते ही देते हैं। तो मैं कई बार कहती हूँ डॉक्टर साहब ये तो इतनी जल्दी नहीं यूज करना चाहिए, कि नहीं डॉक्टर देते हैं। यस मैडम, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, एंड इट हैज नॉट गिवन एनी कॉम्प्लिकेशन, दैट्स वेरी क्लियर। ओनली थिंग इज देयर, ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में 3-4 मोलेक्यूल रहते हैं, उसमें से प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो एक मोलेक्यूल होता है जो अपने ग्लूटियस मैक्सिमस में गांठ कर देता है, हाँ, तो वो एक देखना चाहिए। मैंने कभी एक पेशेंट को भी हुआ ना तो प्लीज डिस्कार्ड ऑल दैट बैच, क्योंकि वो एक पेशेंट को हो रहा है तो सबको होगा। मैंने वी हैव सीन दिस इन ऑलमोस्ट मोर देन 20-30 पेशेंट्स, हर एक मैंने अलग अलग डॉक्टरों के साथ। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पीपल। डॉक्टर साहब, आपका एडजुवेंट्स का क्या प्रोटोकॉल है? फोलिक एसिड आप कौन सी यूज करते हो, एंड कोई एंटीऑक्सीडेंट्स का आपका कोई फेवरेट है, वो सब क्या है? मैडम सिर्फ 4 टैबलेट्स रहती है, 4 टैबलेट्स में 4 मोलेक्यूल। एक तो फोलिक एसिड, हर एक पेशेंट को मैडम आई यूज क्वाड्रीफोलिक, उनसे बात करके कि बाबा यस क्वाड्रीफोलिक, क्योंकि मैं उनसे बोलता हूँ कि बाबा मालूम नहीं है आपका, तो मैंने कभी फोलिक एसिड का जीन बीन कुछ देखा नहीं है, तो इट इज बेटर टू टेक दिस, ये गोली लेते रहो। नंबर 1 टेट्राफोलेट, माने कोई टेट्राफोलेट, माने जो आप नया जो आए हैं ब्रांड्स टेट्राफोलेट, वो ब्रांड्स। दूसरा होता है किस कंपनी का, ये किस कंपनी का है? ये फोरम पे बोल दूं चलेगा? हाँ मैंने विद कंसेंट, यस, इट इज फोलिन्यू एक्सटी मैडम, फोलिन्यू एक्सटी। मैम ट्रेफोलिक भी आता है ना सन फार्मा का? हाँ सन फार्मा का ट्रेफोलिक भी आता है, ये 2 है। फिर दूसरा मैडम मैं ट्रेफोलिक है, टेट्राफोलिक है, ये टेट्राफोलेट। फिर दूसरा यूज करते हैं कैल्शियम, हर एक आईवीएफ के पेशेंट को 1 ग्राम कैल्शियम और 75 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन तो देनी ही है फ्रॉम डे 2। ठीक है। और चौथा जो देता हूं वो कभी कभार, अगेन सेम साइकिल कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर उनका ऐसे डिसाइड किया है पहले से, तो उन्हें एल-आर्जिनिन रखता हूं, ओके, बिकॉज इट डेफिनेटली इंप्रूव्स द वाजोडाइलेटेड इफेक्ट्स। बस इससे आगे नो 4th टैबलेट और नथिंग एल्स। ओके, मतलब इंस्टेड ऑफ ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर आप आर्जिनिन यूज करने के बदले आप डे 2 से ही यूज करते हो? यस, बिकॉज ना दैट गिव्स अस, की कोई चॉइस है डॉक्टर साहब? एचएमजी की भी कोई चॉइस है? वो भी बोल दूं? हाँ, अच्छा, मैं तो अपना भी बता दूंगा, मैं तो एलजी यूज करती हूँ। अच्छा, हाँ, यस मैडम, इन आवर one center we are using LG, where we are getting good results, same as where I am using as a Samartha Life Sciences. Samartha Life Sciences उनका भी मैं यूज करता हूँ, और दूसरा एक अवेटा करके है मैडम, अवेटा बायोटेक, उनके यूज करता हूँ। तो ये तीनों मैंने हर एक अलग अलग सेंटर्स में है, तो ये तीनों अच्छे हैं। मैम एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं बताई, एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं बताई सर। डॉक्टर साहब कोएंजाइम क्यू पे थोड़ा लाइट डालिएगा, स्पेशली देयर सेइंग सर तो 4 टैबलेट्स यूज करते हैं। हाँ, सर तो 4 टैबलेट्स यूज करते हैं, इसके अलावा सर कुछ और यूज करते हैं? मैं तो इस नहीं मैडम, ये मैं तो इतना यूज करता हूँ। ओनली थिंग प्रायर साइकिल, माने जो प्रायर साइकिल है जिसे मैं बहुत हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इवन माय नर्सेज डू दैट, वी कॉल इट एज ए प्री आईवीएफ। वो पेशेंट का नाम है प्री आईवीएफ, माने जो भी पेशेंट आती है तो उस दिन पे, माने प्रायर डे 2 पे, प्रायर साइकिल के डे 2 पे पेशेंट आएगी, तो वो सब पेशेंट्स आते हैं, वी कॉल देम एज प्री आईवीएफ वाले पेशेंट्स हैं। तो प्री आईवीएफ वाले पेशेंट्स मीन्स आइदर वो 2 महीना पहले भी आते हैं कभी कभार, जब वो ओबीज होते हैं तो उन्हें हम ओसीपील देते हैं,
वो मुझसे बात करके कि इनका कौन से डे पे मेंसेस आना चाहिए नहीं, वो सब मैंने, इट इज वेरी मच शेड्यूल्ड। सेकेंड थिंग ये होता है कि उन्हें एस्पिरिन दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, और यहाँ पे हम कोएंजाइम Q10 देते हैं, अच्छा, एल कार्निटिन और कोएंजाइम Q10 यहाँ पे हम देते हैं प्रायर 1 या 2 साइकिल ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन साइकिल, बस उतनी 4 चीजें, क्योंकि ज्यादा देना वो गलत है। होता यह है कि बहुत बार एसिडिटी होती है, बहुत बार बाकी कुछ मंजन होते हैं। वन थिंग आई फॉरगॉट मैडम, अगर पेशेंट पीसीओएस वाली है तो सब पेशेंट्स मेटफॉर्मिन पे रहते ही है, चाहे उनका आईआर डेमोन्स्ट्रेट हो या चाहे उनका आईआर डेमोन्स्ट्रेट ना हो। एंड अदर देन आईवीएफ, अगर आईआर डेमोन्स्ट्रेट है तभी मेटफॉर्मिन दे दूंगा, नहीं तो मेटफॉर्मिन नहीं। कितने देते? 1000? मैडम पेशेंट, वो पेशेंट का कितवा महीना है उसके ऊपर है। माने अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन के पहले महीने में है तो 500, पेशेंट अगर मेटफॉर्मिन के दूसरे महीने में है तो 1000, और अगर पेशेंट 1000 टॉलरेट कर रही है, रेजिस्टेंट पीसीओएस है और वो तीसरे महीने में है तो 1500 भी। उनका टॉलरेंस देख के और उनका एलएफटी करके, फॉलिक एसिड करके। सर कई बार पेशेंट जब स्टिमुलेशन होते हैं, एलएफटी वगैरह सब ठीक है, कहती डॉक्टर साहब नौशिया है, नौशिया, व्हाट डज दैट मीन? यस, वो नौशिया होता ही है मैडम। तो इसमें ना वी चूज द डिफरेंट फॉर्म्स। मैंने कभी कभार मैडम ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट वी आर यूजिंग द एसआर फॉर्मुलेशन, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है। बट मैंने ये देखा है कि अगर हम नॉन एसआर फॉर्मुलेशन यूज करें तो बहुत बार नौशिया नहीं होता। सेकंड, मैंने ये देखा है कि अगर हम एक्सआर कॉम्बिनेशन यूज करें, एक्सआर माने एक्सटेंडेड रिलीज वाला अलोंग विद मायोइनोसिटॉल, बहुत बार नहीं होता मैडम ये। डॉक्टर साहब अभी आपने मुझे बोला कि गाइडलाइंस में नहीं आए तो कुछ मत यूज करना, तो मायोइनोसिटॉल तो अभी गाइडलाइंस में आया नहीं सर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैंने बोला कि ये प्री आईवीएफ पे यूज होगा, नॉट इन द साइकिल ऑफ स्टिमुलेशन, ओनली इन प्री आईवीएफ पे। वो भी मैंने बोला अगर रेजिस्टेंट पीसीओएस है, हमें मालूम है कि अरे इसको सब देखे ये हो रहा है, तो उनसे बात करके वी टेल देम कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस, वी एक्सप्लेन देम द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल यूज। मैंने माय सिस्टर विल टेल देम कि दिस इज एम्पिरिकल यूज एंड वी आर यूजिंग दैट। हमें ये मालूम है कि ये ड्रग इफेक्ट नहीं देता, ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, बट कहीं कहीं पेशेंट में इसे यूज करने के बाद फायदा हुआ है, तो ये हम दे रहे हैं आपको, तो क्या दे दे? इफ दे से यस, वो बहुत बार ऐसे बोल देते हैं कि अरे दे दो। लेकिन 2 पेशेंट्स, आईटी वाली पेशेंट थी, उन्होंने बोला कि नहीं देना है, तो भी नो प्रॉब्लम, तो नहीं देना है, तो प्लेन मेटफॉर्मिन दिया गया। मैडम जो काउंसिलर रूम है ना, वो काउंसिलर रूम पे हर एक प्रकार का ये सब लगा के रखा है, हर एक प्रकार के कंसेंट है। उन्हें खटक से इंटरनेट पे जाके उन्हें हम दिखाते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल यूज ऑफ दिस थिंग्स एंड एटसेट्रा, उनको पढ़ाया जाता है एंड बाद में वो यूज इट। ऐसे मैंने पेन उठाया और लिख दिया, ऐसे नहीं होता। नॉट इवन विथ एंटीबायोटिक, नॉट इवन विथ दिस, नॉट इवन विथ LMW हेपेरिन। LMW हेपेरिन के बारे में सर वो कहते हैं कि जी WHO कहता है जी कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं यूज करने, तो आप Yes, मेटफॉर्मिन और ये वाला जो है मायोनिसिटॉल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं या अलग अलग? एक्सलेंट मैडम। मैडम यूजुअली होता यह है, इकोनॉमी का चूज, माने इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी कभार ये गाइडलाइंस थोड़ी सी, माने थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट वी इन्फॉर्म द पेशेंट कि बाबा ये ऐसा ऐसा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही ड्रग, वो भी मायोइनोसिटॉल एंड मेटफॉर्मिन, बिकॉज इंडियन FDA हैज गिवन द अप्रूवल फॉर दैट। Indian FDA has given approval for mixing mayoinositol along with metformin, so we use it. लेकिन उसमें अगर ये है वो है वो है वो है, वो नहीं यूज करते। मैंने अभी 1-2 ड्रग मैडम मैंने ऐसे देखा जिसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, आयरन भी है कैल्शियम के साथ। मैंने बोला यार ये तो रबड़ी खा रहे हो, ये क्या खा रहे हो, ये तो गोली नहीं है, ये तो रबड़ी है। कहते हैं जी हम तो PhD है फार्मेसी में, वो बोलते हैं ऐसे। मेरे जैसे लोग I have given justice to the topic. यस बहुत डॉक्टर, सारी एक चीजें छोटी सी चीज रह गई है। यस मैम। आपके बहुत सारे मेल पेशेंट्स हैं जिनका आप देखते हो कि उनका DFI ज्यादा है। हाँ।
40%, 45%, 30%, उनका क्या करते हो? और अदरवाइज जो बिल्कुल बढ़िया हैं उनको Yes. क्या देते हो? मैडम जो बढ़िया है उन्हें कुछ नहीं देता, सिर्फ फोलिक एसिड की गोली देता हूँ। उसे बोलता हूँ कि ऐसे ना हो जाए कि फोलिक एसिड या विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण कोई आपका डेंजरस स्पर्म जाके उसको कुछ हार्म ना करे। बस प्लेन फोलिक एसिड खाओ और एक्सरसाइज करो। जिनका DFI ज्यादा है उन्हें प्रोटोकॉल है, 4 चीजें हैं। नंबर 1, मेरे सभी पेशेंट सूर्य आप लोग नमस्कार सब करते सुन हैं। रहे हैं, फोलिक एसिड जेंटलमैन में बात कर रही है। Yes, yes, yes. Gentlemen में folic acid, yes, that is very important, very important. We have documented folic acid and B12 deficiency in male patients. When B12 और when विटामिन डी और एक B12 जो है मेरे नहीं, जैसे हाँ, लोग देते हैं जेंटलमैन को, पर ये Yes. फोलिक एसिड कभी नहीं दिया मैंने। yes मैडम, folic acid तो बहुत जरूरी है। Another important thing मैडम, ये बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा था, 1 मिनट है, मैं क्या, हाँ, ये 4 चीजें इन हाई DFI, उसमें मैडम मेरे सभी पेशेंट सूर्य नमस्कार डालेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हलासन करेंगे। हाँ, मैंने योगा पे डालूंगा मैं उनको। जिस जिस योगासन से नाभि भूमि को टच करती है वो सभी योगासन उन्हें सिखाया जाता है। मैं उन्हें कभी कभार करके भी दिखाता हूँ। मैंने 1-2 पेशेंट ने बोला, मैंने दे वर वेरी फ्रेंडली, ही वाज अ कमिश्नर, ही सेड कि सर आप बोल रहे हो लेकिन आपको क्या आता है दिखाओ। तो मैंने उसे नौकासन भी करके दिखाया कि किस प्रकार से ये करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमें मालूम होने चाहिए दीज आसनास एंड उनके फायदे क्या होते हैं। तो ऑल दोज आसनास विच टच देयर नाभि टू द भूमि, तो इसमें ये दे आर बेनिफिशियल बिकॉज दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द पेल्विस। सेकंड मैडम, अभी ये चीज मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन बोल देता हूं, इंपिरिकल है लेकिन ये हमने तो बहुत सारी देखी है, दैट इज बड़ी सौंफ। जो बड़ी सौंफ है ना, बड़ी सौंफ मैडम, दैट बड़ी सौंफ हैज वेरी गुड इफेक्ट इन आयुर्वेदा and that improves the fluidiness of the semen, fluidiness, and we have seen along with that improvement in DFI. We have documented patients. And last जो चीज है ये, Sir, what is body Body- soft? Sir, what is बड़ी body सौंफ डॉक्टर, एक होती है पतली सौंफ जो खाना खाने के बाद खाते हैं, और एक बड़ी खाना सौंफ है खाने जो के बाद- अचारों में डालते हैं। हाँ, Moटी हाँ, soft, वो बड़ी मोटी हाँ, soft. वो बड़ी सौंफ। हाँ। और चौथी चीज मैडम ये है कि हर एक पेशेंट का, ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं लो DFI वाले, तो उनका हमेशा सेकंड सैंपल लिया जाता है फॉर इक्सी। सेकंड सैंपल मैंने पहले उन्हें बोलते हैं कि घर में आप थोड़ा सा हैव द आइदर सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये करके आओ, और सेकंड सैंपल जो है वो सेकंड सैंपल लेके हर एक पेशेंट का फ्रोजन किया रहता है एक, और उस दिन भी वो सेकंड सैंपल देगा हमें लैब में फ्रेश इक्सी करने के लिए। ठीक है। दैट इज अ प्रोटोकॉल। Also, we also tell them that they must ejaculate every third day, Yes. and we take also the second sample. मैडम इवन माय पेशेंट्स आर डूइंग ऑन द सेम डे पे करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। ओनली थिंग कि पेशेंट के साथ बहुत देर तक बैठना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में 2 बार देना ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है पेशेंट को, मेंटल ट्रॉमा। लेकिन यस मैडम, आई एम इवन विद दिस टेक्निक आई एम इम्प्रूविंग देयर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम आल्सो, एंड इवन द प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ये, उसके बारे में कभी बाद में बोलूंगा। चलिए। Now, sir, if you have time, we'll ask other people to ask you questions. नहीं आज मैडम, तो मैं मैंने थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आज करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं नवचंडी यज्ञ में बैठा था अच्छा और ये लास्ट का करके सिर्फ अभी 4 जन खाना खाने बाकी है, तो आई थिंक आई हैव टू गो देयर। yes, please, sir. Thank you, Please, sir. thank you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। आप डिस्कस कीजिए। Excellent, ma'am. Any questions? Ma'am, he said that he uses 4 things for the male partner. One was folic डॉक्टर साहब, acid. एक तो उसने बोला कि यूज करता है वो Folic acid. फॉलिक एसिड, एक उसने कहा B12 देता है, एक वो बोलता है कैल्शियम भी देता है, एस्पिरिन देता है। और मैम एल आर्जिनिन Partner के लिए नहीं था, ma'am. एल आर्जिनिन भी बोला। Male partner के लिए नहीं नहीं. डॉक्टर साहब, उसने बोला उसने क्या बोला, जो DFI ज्यादा है, सूर्य नमस्कार, हलासन, हाँ. नाभि वाले सारे वो बोला, हाँ, नाभि वाले, हाँ, बस ओनली वही बताया, वही ma'am. वाली चीज बताई उसने, और हाँ. उसने बड़ी सौंफ बताई। हाँ.
बड़ी सौंफ भी उसी में बताया। हाँ बड़ी सौंफ एम्पेरिकल है पर ही सेइंग इट्स गुड। जेंटलमैन का तो उन्होंने बोला अगर आपके नॉर्मल है तो कुछ मत दो, फोलिक एसिड दो, ओनली फोलिक एसिड। फोलिक इवन नॉर्मल एसिड है तो फोलिक तो बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड जरूरी है, मतलब नाउ द कपल गेट्स द फोलिक एसिड। I did not know. I've never used it. I mean, it's a, you know, sometimes you interact, then you find, you know, there is something comes out. चलिए, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? Anybody wants to share anything, you know, over and above what he has said? नहीं मैम, वो सिस्ट फॉर्मेशन वाला उन्होंने बहुत अच्छा बताया। सिस्ट फॉर्मेशन मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, पक्का। यस नहीं, आई थिंक AMH वाली बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई है कि AMH जो है वो कुछ समझ नहीं आता, उसका रिलायबिलिटी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि डे 2 का AFC इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज जिस टाइम आपने ट्रांसफर करना है, आपने जब ट्रांसफर में HCG देने से पहले E2 कराइए और आप अपना प्रोजेस्टेरॉन कराइए। ये तो 1.2 लेता, मेरे जैसे लोग लेस देन 1 प्रोजेस्टेरॉन पे बिलीव करते हैं। और आपके कितने फॉलिकल बने हैं तो उसके हिसाब से यू कैन फाइंड फॉलिकल में E2 लेवल 1000 भी आ जाते हैं, 750 भी आ जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 750 आ जाए तो आपको लगता है कि 3 तो फॉलिकल अच्छे निकलेंगे। और एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इज दैट यू नो यू मे मेक मेनी फॉलिकल्स बट जो प्रेगनेंसी बनाने वाले फॉलिकल हैं वही 3-4 वो वही 3-4 होते हैं। Yes, तो भैया 10 कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे 20 कर लो, फॉलिकल तो वही होंगे। एब्सोल्युटली मैम। और कई बार ऐसा होता है कि आप अभी तो ये हो गया कि एक ही सीमन डोनर भी एक आदमी एक को दे सकेगा, एक कपल को, और वही आपके अंडों का हो गया कि आप एक लेडी दूसरे एक ही कपल को दे सकती है। पहले ये था कि शेयरिंग वाज अलाउड, तो we have seen that you know when one patient it gives pregnancy, another patient does not give pregnancy. तो ये सब यहाँ का खेल है। अपनी जिंदगी नहीं कोई बदल सकता डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर दीप्ति, you want to share something? No, ma'am, it was very nice. You know, especially for those who are not doing actual IVF, just the basic infertility practice. For them, it was excellent, ma'am. It was excellent. एक बात बिल्कुल क्लियर है, पेरिफेरी में पिक्चर बहुत डिफरेंट है डॉक्टर साहब। हाँ मैम, पेरिफेरी में पिक्चर बहुत डिफरेंट है एंड यू हैव टू टेलर मेड थिंग्स। yes. यू हैव टू टेलर मेड थिंग्स। एंड कई बार ऐसे इंटरेक्शन, वो वाली बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अभी तक तो 1 स्लाइड था, अब तो आज एक भी स्लाइड नहीं था। बहुत अच्छा था। so मैम, ये जो मॉडिफाइड एप्पलबाउम स्कोर है, मैंने और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को करते हुए देखा है, where they mention the sphericity index of the dominant follicle. So I was thinking maybe I should come back to you for revision of ultrasound classes. ये क्या बोल रही है डॉक्टर संगीता? संगीता उदयपुरिया, मैम, क्या पूछा तूने? Ma'am, there any role of steroids in stimulation cycle, ma'am? डॉक्टर साहब एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर पेशेंट को लॉन्ग इनफर्टिलिटी है और 2-3 IVF साइकिल फेल हो गए हैं तो डेक्सामेथासोन देने में वो है, पर मेरे जैसे लोग डेक्सामेथासोन जो है वो ट्रांसफर के बाद ही देते हैं। मैं एक बार कई बार से पूछूंगी। I only give after the transfer. आप क्या सोचते हो संगीता? Ma'am, some IVF experts are using here. That's why I asked the question. अरे जोर से बोल यार संगीता। Ma'am, some experts. Sangeeta is from Rajasthan. She's been Yes. trained by us. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, some experts are using here. That's why I asked the question. क्या देते हैं और कब से देते हैं? Ma'am, they are using prednisolone mainly. Ma'am, doses I doesn't remember. I have seen their files. नहीं, एक बार संगीता, तेरे जैसे लोग इतने सुपर इंटेलिजेंट हैं, ये कैसे बिना ड्रग क्या यूज करें, क्या डोसेज यूज करें, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं है तेरे से। मैम 1-2 फाइल देखी थी, ज्यादा तो नहीं देखी थी, तो थोड़ा क्वेरी था कि मतलब कि जनरल यूज चल रहा है या फिर 1-2 फाइल देखी कि कुछ लोग ही रेयरली यूज कर रहे हैं। तो मैडम प्रॉब्लम तो इम्प्लांटेशन में, अंडा तो कोई भी बढ़िया बना लेगा, एम्ब्रियो तो कोई भी बढ़िया बना लेगा, इम्प्लांटेशन होगा या नहीं होगा वही प्रॉब्लम है।
ठीक है. I think it had been a wonderful session. Thank you very much. When which literature he was saying to update every time? Spiroff, Speroff की endocrinology. reproductive endocrinology. रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी पे डॉक्टर, स्पिरोफ. ये डॉक्टर ज्योति अग्रवाल भी उसकी चेली है डॉक्टर, वो भी यही कहती है. अच्छा. स्पिरोफ, हाँ. वो भी ये कहती है स्पेरोफ की लेटेस्ट पढ़नी चाहिए. हेलो मैडम. मैडम डॉक्टर संगीता फ्रॉम दिल्ली. एक क्वेश्चन है, पीसीओ पेशेंट में कई नहीं, बार आपको सूरत नहीं दिखाओगे तब तक बात नहीं करूंगी. उनको बुलाना उनको. हाँ. ये कौन? सूरत नहीं दिखाएंगे तो बात नहीं करूंगी. नहीं तो ये तो मैम सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन. मैं ट्राई कर रही हूँ. हेलो मैम. यस, बताइए. हाँ मैम, जो पीसीओ पेशेंट होते हैं, जब हम लोग उनको एफईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कई बार उनकी लाइनिंग थिन हो जाती है और 9-10th डे अच्छी बनती, तो उसमें क्या करना चाहिए? वो 6-8 होती है, फिर थिन होते होते 4-5 पहुंच जाती है. देखिए, अभी वो ही वाज टॉकिंग ऑन द सेम थिंग. वो कहते हैं लेट्रोजोल अगर आप यूज करते हो तो एक्सपेक्टेशन है कि लाइनिंग खराब नहीं होगी, पर अगर लाइनिंग खराब होगी तो फ्रीजॉल कर लेते हैं, खत्म बात. नहीं मैम, ये वो है एफईटी के समय, जैसे हमने पीसीओ में फ्रीजॉल किया, देन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यार मेरा कैमरा ऑन करना. एट दैट टाइम समटाइम्स लाइनिंग रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली ऑन 8-9 डे. कितना रिड्यूस हो जाती है मैम? वो 7-8 से रिड्यूस होकर 4-5 तक पहुंच जाती है, फिर हमें कैंसिल करना पड़ता है साइकिल को. प्रीमेच्योर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा ना उसमें? ऐसा तो नहीं है. हम डॉक्टर साहब, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ कि 7-8 हो गई और फिर वो 4 पे पूछना है. हाँ, कोई कॉस्ट नहीं बनता. डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल क्लियर है, एनीबडी हु इज लिसनिंग मी, अगर आपकी लाइनिंग 7 नहीं है, चाहे वो IUI हो और चाहे वो IVF हो, प्रेगनेंसी नहीं दे सकता. प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब मेरी तो ये है कि सारी मेरी जो एज ए टीचर आई हैव फेल्ड. जब आप देखोगे कि आपका बेस्ट क्वालिटी आपने ब्लास्टोसिस्ट डाली, बेस्ट क्वालिटी, एंडोमेट्रियम इज परफेक्ट, सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रेगनेंसी नहीं आती और आपका मिड ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरोन है वो 80 आता है, 100 आता है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो क्या करोगे आप? Absolutely. मैं तो उनको बोलती हूँ कि डॉक्टर साहब 4 IVF फेलियर है उनके. आप सोचोगे आपका तो जी जरूरी बेटा तेरा पॉजिटिव आएगा. एंड क्लियर सिंगल लाइन. Disheartening. नहीं, वेरी डिसहार्टनिंग. मेरे जैसे लोगों को तो उस दिन दोपहर का खाना खत्म हो जाता मेरा. And I remember हम सारे ऐसे पेशेंट को मैम के पास भेज देते हैं, just to say इस पार्ट की काउंसलिंग के लिए मेरे पास भेज देती हैं. सक्सेस आता तब तो भेजती नहीं है. नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू. सॉरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया था मेरा. मैम, प्रोजेस्टेरोन लेवल हम लोग को कब कराना चाहिए? ट्रांसफर के जस्ट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसफर, देन आफ्टर ट्रांसफर मैम कब कराना चाहिए? डॉक्टर साहब, हम FET साइकिल की बात करते हैं. FET साइकिल में ही. हाँ, FET साइकिल हो गया. आपने देखा कि 14-15 डे पे बढ़िया एंडोमेट्रियम आ गई, ठीक है. Yes, Now, अब आपको स्विच ओवर करना पड़ता है. जब हम Yes, स्विच ओवर करने से पहले E2 कराते हैं और प्रोजेस्टेरोन कराते हैं. प्रोजेस्टेरोन अगर लेस देन 1 होगा तो ही प्रोसीड करना है. तो स्विच होने का मतलब है कितने दिन, कौन सा दिन वाला अंडा आपने सेव कर रखा है, उसके हिसाब से आप प्रोजेस्टेरोन देना शुरू करते हैं. डन? यस मैम. तो उससे पहले कराते हैं. ओके मैम. एंड मैम, ट्रांसफर के बाद हम लोग नहीं कराते कि टू सी कि कहीं प्रोजेस्टेरोन लेवल कम तो नहीं हो रहा है, वी नीड टू ऐड मोर प्रोजेस्टेरोन, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब ना, ऐसे मैं सुनो मैं क्या करते हैं डॉक्टर साहब. क्या होता है कि आज की तारीख में हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में लोग फटाफट जूता रख के मारने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम जरूर मिड ल्यूटियल फेज में जरूर प्रोजेस्टेरोन कराते हैं. And if the progesterone is more than 30, we tell her that everything is fine with her. जो आपको हम progesterone दे रहे हैं, that is more than enough. ओके मैम. राइट मैम, थैंक यू मैम. उससे क्या है कि आपको ये आप हर चीज देख लेते हो कि वो आदमी कहाँ क्वेश्चन करेगा हमारे को. ओके, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Bye.
you.